Hello, hi, good evening. This is Radishan Shreya. How are you? Hi, am I audible? Hello. Okay, so this is hashtag Aman Sodi. Hi, how are you? Okay, let me see. Uh, this is the first time we are going live at this time, and this is pretty late, I know. Hi, Sonika Manoja, how are you? Hi, Gayatri ji, how are you? Nice name, Gayatri ji. Dilpreet, hello. Thank you so much for giving me that dear tag. Okay, dear means आपके करीब, दिल के करीब, और जब आप वो पोजीशन देते हैं, I feel more responsible. Thank you for that. Faiz Shahid, Salim, Gayatri ji, how are you? Navman, Rekha Verma, Amir Kaur, hi. Alam Aisha, how are you? Akash, Amita Tiwari, hello. Hi. Are we there on Insta as well? Yes, ma'am. And kindly ask everyone Okay. to share so that maximum people can take benefit Okay. of that. Alka Maheshwari, hi. Rajni ji, hi. And Jyoti Garg, thank you for watching. All right. I cannot see people here. Here on this number. 1 second. Okay. Mamta Bajaj, Jagdish, hello ji, hi, how are you? Gayatri, Sakshi Arora is watching. Thank you so much for watching at this time. This is kind of odd time, little late. Rakhi ji, hi. Dipti, hi, how are you? Okay. Nair Rehan, गुड नाइट एंड स्लीप टाइट. पवन जी, नहीं अभी गुड नाइट नहीं, अभी आस्क हैशटैग डायरेक्शन श्रेया का टाइम है. और इस टाइम लाइव जाने का मोटिव ये था कि इंटरनेशनल हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ पर टाइम डिफरेंस होता है. ओके, हाय. there's a filter. Okay, I'm good, Vikram ji, thank you so much. Siddhisha, Dr. Om, Babita ji, hi. Trupti, Gayatri, thank you. Sanjib, good. Satyam LIC, thank you for watching. Savita, thank you. Hi. Aman Sodi, nice to see you. Same here, thank you. All right. Okay, hi. I think we are there live on Insta and Facebook. Tanvi ji, hi, 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 hi. Okay, Kavya, Kakkar, Ratihina, Sheila Rana, Raj, Tyagi, Reena, Neetu, and okay, hi everyone. Good evening. Okay, why we are live here at this time? This is 10:30. So we are live because there is a time difference in some countries. India और international हमारे जो clients हैं वो हम लोगों से बात नहीं कर पाते थे, तो I chose this time. All right. So hashtag ask Direction Shreya हम लोग start कर रहे हैं. I had received many queries. और मैं धीरे क्यों बोल रही हूँ? Because Shaurya is sleeping here. If you want to see him, I can show you. This is Shaurya sleeping, right? चित्रांश, आप कह रहे हो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है. Okay, this is my boy sleeping here, so this is the reason मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ. Okay, right. How to take your diet plan? SA.RA 730-730-3835 730-730-3835 नंबर पे आप कॉल करके डाइट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं. और आप सबको मालूम है कि हमारा अब तो यिन एरियल योगा भी आ गया है, और हील आयुर्वेदा, ट्रिम एंड टाइट, स्टे टॉक्स, और अब बहुत जल्दी, अभी आप सब जानते हैं 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है, और मैं टिफ़िन सर्विस भी स्टार्ट कर रही हूँ, डाइट टिफ़िन्स. सो डाइट टिफ़िन हम बनाएंगे, खिलाएंगे हम. और मैं जो हमेशा से करना चाहती थी वो ये कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को खाना मिले, अच्छा खाना, और वो भी अफोर्डेबल प्राइजेस पे. सो मैं पेशेंट्स के लिए भी जो इन पेशेंट्स हैं, जो एडमिट हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग टिफ़िन्स लेकर आ रहे हैं ट्राई सिटी में. 7 अप्रैल से वो सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी, पर उसके लिए मैं आपसे बाद में बात करूँगी. आज हम क्वेश्चंस आपके आंसर करना चाहते हैं. आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, वो मैं सब आंसर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कुछ स्टोरीज़ में मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, मैं वो आंसर कर देती हूँ. अमित जी ने बेहतरीन बोला था, थैंक यू. किसी ने मुझसे अनिका _4230 उन्होंने मुझसे पूछा है प्लीज़ शेयर योर व्यूज़. ये आपके क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे पास, सो इन क्वेश्चंस को मैं भी आंसर कर रही हूँ.
ओके, गुंजा माथुर, मैं आपसे बात करूंगी अभी, रुकिए। सो अनिका ने पूछा है कि अपने शेयर कीजिए व्यूज़ कीटो, इंटरमिटेंट एंड बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के बारे में। राइट, सो अनिका _4230, देखिए इंटरमिटेंट मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी दादी की ओरिजिनेटेड डाइट है, और इंटरमिटेंट का ये मतलब है कि जितना मैं समझ पाई हूँ, पर हाँ उसमें बहुत सारे आगे फेजेस हैं, ऐसी विंडोज़ हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है, पर कुछ हद तक जहाँ पर लोग सिर्फ 2 बार अपने मील्स लेते हैं, और एक हद तक तो समझ में आता है कि आपने एक मील लिया 12:30 बजे या 11 बजे या 1 बजे के करीब, दूसरा मील आपने एट अर्लीस्ट लाइक 6:30 और 7 o'clock ले लिया, फिर उसके बाद आप अगले कंप्लीट 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, विंडो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट मील खाते हैं। सो ये चीज़ हमारे साधु महात्मा या संत या हमारे एंसेस्टर्स सब फॉलो करते थे। सो उस चीज़ को हम इंटरमिटेंट कहते हैं। मतलब मेरे दादी कहते थे, अब मुझे नहीं पता कि मतलब आप लोग इंटरमिटेंट कहते हो, मेरे दादी वो चीज़ पहले से फॉलो करते आते थे, और जल्दी सो जाते थे। सो इंटरमिटेंट अच्छी चीज़ है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे हम लोग हमारे क्लिनिक में भी कोई कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको हमें सेल्स को स्टार्विंग करानी होती है, हम लोग उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम कर देते हैं, इंटरमिटेंट का एक और लेवल हम लोग चेंज कर लेते हैं। सो बेसिकली ये नाम दिया गया है इंटरमिटेंट। सो पर एक लेवल तक ठीक है, पर जब आप वो 24 घंटे का विंडो और 18 घंटे का विंडो जब आप टू मच ले आते हो तो वो ठीक नहीं है। बेसिकली आपको हर एक इंडिविजुअल को जो डाइट प्लान्स है वो अपने बॉडी के हिसाब से और अपने ब्लड टेस्ट के हिसाब से करना चाहिए। सो अब अगर आप ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को बोलोगे या लैक्टेटिंग वेमेन को बोलोगे या फिर एक टीनेजर को बोलोगे कि आपको इंटरमिटेंट करना है, सो उसके लिए अच्छा नहीं है। सो हर एक पेशेंट को अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। सो इंटरमिटेंट उस लेवल तक बहुत अच्छा है जब आप 2 मील्स ले रहे हो, क्योंकि उतना आजकल हम काम नहीं करते, हमारा जो एक्टिविटी है वो इतना कम हो गया है कि अगर हम 3 बार खाना खाएंगे तो जो फूड से जो एनर्जी निकलती है वो हम कहाँ स्पेंड करें, हम लोग उतना तो एनर्जी हमारा आउटपुट नहीं होता। तो जब एनर्जी आउटपुट नहीं है तो जितना भी हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो, एप्पल का भी जो थोड़ा सा फ्रक्टोज है, जो कैलोरीज है, वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। सो इसीलिए आजकल के टाइम पे 2 मील्स खाना बहुत अच्छी बात है। So that ways I support intermittent. Now coming on to keto. So keto diet menu क्या है, उसमें हाई फैट है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है। सो अगर जब हाई फैट है तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए वो डाइट बहुत अच्छा नहीं है। और डेफिनेटली अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो या आप अफोर्ड कर सकते हो उतना फ़ैट खाना, तो डेफिनेटली फिर वो आप खाइए। लेकिन फिर वही बात आ गई कि आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है, उस हिसाब से आपको डाइट्स खाने चाहिए। सो कीटो को लेके मेरे व्यूज़ इंटरमिटेंट के कंपैरेटिवली कीटो उतना मुझे नहीं ठीक लगता है। इंटरमिटेंट आई स्टिल सपोर्ट। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कोकोनट ऑयल के साथ बनती है, दैट इज़ रियली गुड। सो अगर बुलेट प्रूफ कॉफ़ी को हम कीटो में नहीं भी डालें तब भी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बहुत अच्छा है। बुलेट कॉफ़ी, इन्होंने बुलेट प्रूफ लिखा है, सो बुलेट कॉफ़ी वो बहुत अच्छा है। सो अनिका, मैंने आपको आपका आंसर दे दिया, आपने इसमें बुलेट प्रूफ लिखा हुआ था। तो इंटरमिटेंट येस, दैट इज़ रियली गुड अगर आप उसको अपने लिमिट तक फॉलो करो। एंड हाँ, एक डिस्क्लेमर ज़रूर है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग कोई भी डाइट जो आप, भेड़ चाल बहुत ज़्यादा इंडिया में, सो आप लोग अगर लगता है कि एक किसी का यूट्यूब का एक वीडियो में टैग है कि इतने दिन में इतने आपको अपने आप को पतला करें, या फिर ये वाला पानी पिए और 7 दिन में ये हो जाता है, सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जितना क्लेम लोग करते हैं और जितना आपको वो फैंसी वो वर्ल्ड में फंसा लेते हैं, उतना नुकसान है। तो जितनी भी चीज़ें डब्बे से निकल के फटाफट घोल के जो भी आप पीते हैं, जो भी आपके शेक्स हैं या मार्केट हैं, कोई भी चीज़ अगर शॉर्टकट से आपको मिल रही है तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे या फिर वो लॉन्ग रन नहीं होगा। सो चाहे अगर आप थोड़ा अपना वेट बढ़ा भी लें थोड़ा टाइम इन्जॉय करके, बट डजेंट मैटर, आपने इन्जॉय किया, उसको टाइम लगा के आप कम भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, सो शुड बी सेफ। हाँ, दैट्स माई पॉइंट। अब Ankita.Parikh31 का क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटीन सोर्स कैन आई हैव इफ़ आई हैव यूरिक एसिड प्रॉब्लम। सो यूरिक एसिड में प्यूरिन्स जो हैं वो हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए। बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, किडनी का एक ये फंक्शन है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारे यूरिन के थ्रू निकाल दो। पर जब
किडनी का जो फिल्टरेशन रेट है वो कम हो जाता है, या कोई और चीज़ें, आप पानी कम पीते हैं, या फिर आपका हाई प्रोटीन डाइट है, आपने फाइबर उतना नहीं रखा, वाटर इनटेक उतना नहीं रखा, तब भी आपका यूरिक एसिड आपके ब्लड में ज़्यादा दिखता है जब आपका किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाता। अब जब ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जैसे मेल के केस में 7 से ऊपर चला गया यूरिक एसिड, फीमेल के केस में 5.5 से ऊपर चला गया, तो आप क्या करें? डेफिनेटली पानी का इंटेक बढ़ा दें। स्पिनच जिसमें प्यूरिन होता है, प्रोटीन्स एंड प्यूरिन्स थोड़ा अलग है, पर प्यूरिन कैसे, जैसे स्पिनच, मशरूम, ब्रिंजल और लेग्यूम्स, धुली हुई दालें आप फिर थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन जो साबुत दालें हैं वो आपको अपने डाइट में डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट करना है। पानी खूब सारा पिएं, और आजकल जैसे समर्स हैं, जौ का सत्तू आप ले सकते हैं अपने डाइट में, आप वो चीज़ करें। किडनीज़ का ख्याल रखें, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। और जब आपको लगे कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसके साथ ही पोटाशियम, यूरिया, क्रेटिनाइन, ये सब चीज़ें भी आपको चेक करवा लेनी चाहिए। ओके, सो सिमरत, हाउ टू गेट रिड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस? सिमरत _017। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही हम लोगों को डायबिटीज़ होता है, PCOD होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कई बार हो जाता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या कंडीशन होती है कि बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट करने लग जाती है, या तो आपके बॉडी में ऐसे जब ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाती है, तो बेसिकली या तो डायबिटीज़ का अगर मैं कंडीशन आपको बताऊं तो या तो बहुत कम इंसुलिन हार्मोन होता है, जो एक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज। अब वो आपका ग्लैंड अच्छे से स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है। अब वो ग्लैंड क्यों स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा होगा? हो सकता है जेनेटिक रीज़न हो सकता है आपका लाइफस्टाइल गलत हो सकता है आपके डाइट में सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट ज़्यादा हैं, सैलड्स कंपैरेटिवली लोगों को पसंद नहीं आता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रोल करें? एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब लोग एक्सरसाइज को जिम में कन्वर्ट कर देते हैं। जिम या 2 घंटा ट्रेडमिल में भागना, या हार्डकोर वर्कआउट करना, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करना विदाउट इवन नोइंग कि आपके टेस्टोस्टेरोन्स कितने हैं, प्रोजेस्टेरोन्स कितने हैं, या आपकी कंडीशन क्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, और फिर भी वो लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते रहते हैं। जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब है कि आप पैनक्रियास के ग्लैंड की वजह से वो प्रॉब्लम है, आप ऐसा कोई आसन्स करो जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करें, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करें। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको आसन करने हैं स्टमक वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। फैटी लीवर ना होने दें। जिन लोगों को फैटी लीवर का प्रॉब्लम रहता है उनके डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कंट्रोल कैसे करें? हाई फाइबर डाइट कर लो, लो GI फूड कर लो। लो GI क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड। अपने डाइट में गेहूं का इंटेक कम करके मिलेट्स का इंटेक बढ़ा लो, जो मैंने साउथ में सीखा है, जो मैंने महाराष्ट्र में सीखा है। गोवा में मैं रह के आई हूँ तो मुझे मालूम है कि नॉर्थ में, अब मैं जैसे नॉर्थ में आई हूँ तो मुझे अब इतना डिफ़िकल्ट हो गया है ज्वार का दलिया और वो नाचनी, ये वाला भाकरी का ट्रेंड। नॉर्थ में फिर आके वही गेहूं के परांठे, गेहूं का दलिया, सब कुछ गेहूं। डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको हर एक चीज़ में शुगर होता है। जैसे कि अगर आप गेहूं खा रहे हैं या कोई भी सीरियल ले रहे हो, उसमें आपका माल्टोस होगा। आप अगर दूध पी रहे हैं उसमें आपका लैक्टोस है। चीनी खाते हो सुक्रोस है। फ्रूट खाते हैं फ्रक्टोस है। तो हर एक चीज़ का एक अपना शुगर होता है। लोग जनरली क्या बोलते हैं, हमें डायबिटीज़ हुआ तो हमने चीनी छोड़ दी, पर चीनी छोड़ना सब कुछ नहीं है। अगर आपके डाइट में फ्रूट्स भी हैं, दैट इज़ फ्रक्टोस। या अगर आप दूध भी पी रहे हैं, दैट इज़ लैक्टोस। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जब भी आपको लगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, आपको क्या करना है, अपना फाइबर डाइट में इंक्रीज़ कर देना है। और मिलेट्स जैसे 7 डेज़ हैं तो 7 मेन्यू हम डाइट में ज़रूर करें। हम रोज़ एक कपड़े नहीं पहनते तो हम रोज़ एक तरीके का खाना क्यों खाते हैं? हम लोगों को एक दिन नाचनी, एक दिन कोई आजकल कितने टाइप के मिलेट्स आते हैं। सूडो मिलेट्स हैं, फिंगर मिलेट्स हैं, और बहुत टाइप के मिलेट्स हैं। आप कुछ भी मिलेट्स ले सकते हैं। मिलेट्स भी छोड़ो, अगर आप बेसन लेना चाहते हो, एक दिन बेसन का पूड़ा, एक दिन बाजरा की खिचड़ी। आजकल समर्स हैं तो जौ का आटा ज़्यादा यूज़ करो। फिर कभी किनुआ है, कभी ओट्स हैं।
सो ये सब आप वेराइटी यूज़ करो, इंसुलिन रेजिस्टेंस से कंट्रोल होती है। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बीमारी को भगाने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करने के लिए, हैव दैट ब्राइट स्माइल ऑन योर फेस, अ लवली ब्राइट स्माइल, नो मैटर व्हाट कंडीशन is around you, no matter how people are kind of around you, like negative or positive. आपको सिर्फ क्या करना है, just smile and give yourself some kind of ambitions, goals, reasons to enjoy life. आप लोगों को पता है, अभी मैं कल परसों किसी से बात कर रही थी, this आई एम रिलेटिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस अगेन। कल परसों कोई दोस्त मिला हमें और मैं उनसे बात कर रही थी कि आजकल चंडीगढ़ में मौसम कितना सुंदर है, और अगर आप आसपास देखो पेड़ मतलब लाल पत्ते आ रहे हैं। सो आप में से सीरियसली प्लीज़ मुझसे भी ज़रूर बातें करिए, चैट ज़रूर करिएगा। रोहित, पुनीत, उषा, डॉक्टर प्रागी एंड सदफ, आयशा, दीपक, माई फैमिली इज़ वेरी गुड, थैंक यू, RJ खान। तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर बात करिएगा कि क्या आप लोगों को टाइम मिला, आप लोगों ने टाइम निकाला। आजकल लोग जब ड्राइव भी करते हैं ना या ट्रैवल भी करते हैं तो अपना फ़ोन देखते रहते हैं, तो आसपास कभी खिड़की से झांका कि कैसे पेड़ आ रहे हैं, पेड़ों पे नए पत्ते आ रहे हैं, और नेचर में कितने सारे कलर्स हैं, ग्रीन के कितने सारे ह्यूज़ हैं, कितने सारे शेड्स हैं, और नेचर कितना सुंदर है। और पता है इतने सारे मौसम हम लोगों को कितने सारे लेसन्स देते हैं। पतझड़ के बाद अब ये जो मौसम है इसमें नए फूल आ रहे हैं। सो एक नेचर भी ये चीज़ बताता है कि नेचर के साथ भी एक पेड़ था हरा भरा, वो एकदम से खाली हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट सैडनेस एंड देन कमिंग बैक अगेन। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हुआ भी है, PCOD हुआ है, थायराइड हुआ है, डायबिटीज़ हुआ है, anything if has happened can be curable, preventable. तो जो लोग तो बहुत नेगेटिव रहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, I've lost all the hopes, कुछ नहीं हो सकता, so we attract negative things. So life is all about happiness. I agree, sadness is a part, स्ट्रेस इज़ एन इमोशन। आज मैं किसी से बात कर रही थी कि कई लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को बहुत बुरा बोलते हैं और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर होते हैं। खुश लोगों के साथ सब लोग बात करना चाहते हैं, पर जो अपसेट होता है उससे लोग बहुत दूर भागते हैं। बट दैट्स फाइन। अगर स्ट्रेस इमोशन नहीं होगा, एंगर इमोशन नहीं होंगे, सो लव इमोशन भी नहीं होगा। सो जैसे ECG स्ट्रेट अच्छी नहीं लगती, वैसे ही सिर्फ एक हैप्पी पर्सन या फिर हैप्पी डेज़ की वैल्यू नहीं होगी। सो इसीलिए it is fine to have insulin resistance, it is fine to have thyroid, it is okay to put on weight, it is okay to have that postpartum fat, it is okay to have stretch marks, it is okay to have every bad spot on your face, और कुछ भी गलत, it's fine। पर उसको ठीक करना, it's equally your duty and responsibility to work on your health. So बस give up कभी नहीं करना। If you are my friend, if you follow me, if you like my talk, if you like me, इतना सा ज़रूर करना कि love yourself, because ultimately what I have realized, because I'm touching my second innings, अगर second inning बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, अच्छा ठीक है। So मैंने जो रियलाइज़ किया है कि योर बॉडी स्टेज विद यू नो मैटर वॉट। योर पेरेंट्स विल समडे गो, योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर फ्रेंड विल मूव ऑन इन देयर ओन लाइव्स, पर आपको आपकी बॉडी के साथ रहना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। एंड दीज डेज मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द फिज़िकल हेल्थ, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ दिखती है कि ख़राब हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या कुछ ख़राब हो रहे हैं, बट मेंटल हेल्थ सिर्फ खुद को पता चलती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। लव योर सेल्फ। एम्बिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कुछ गोल ज़रूर रखो, कुछ भी। जैसे अब मैंने क्या सोचा, मुझे क्या क्या करना है, मेरे लाइफ में भी क्या मिसिंग है। डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया। डाइट क्लिनिक्स के बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया। डाइट क्लिनिक मेरा कोर पैशन है, मेरा कोर वर्क है, लोगों को मैं ठीक कर रही हूँ, मेरे साथ टीम है, 27 क्लिनिक हैं, बहुत अच्छा हमने किया है। पर उसके बाद मैंने यिन एरियल योगा सीखा। मतलब मेरी एज, खैर मतलब लोग बोलते हैं कि इस एज में नहीं, पर मैंने यिन एरियल योगा सीखा, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा एक लेवल लेकर आई हूँ, वो स्टार्ट किया। हील आयुर्वेदा किया, स्टे टॉक्स किया, और अब डाइट टिफिन्स भी लेकर आ रहे हैं। और अगर पर्सनल ग्राउंड में देखें तो अब मुझे स्केटिंग
का एक जो मैंने छोड़ दिया था उसको दोबारा से स्केटिंग शुरू करना है, मुझे अपना हेलीकॉप्टर चलाना सीखना है। सो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अपने लाइफ में गोल्स रखो, पैशंस रखो, कुछ भी करते जाओ। हाई आई एम इज़ दीपिका। ओके दीपिका, आप कॉल कर लो मुझे 7307303835 पे इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी। ओके राइट, सो क्वेश्चंस के मैं आंसर दे रही थी, और मेरे ये बात जो मैंने डिस्ट्रैक्शन किया वो सिर्फ मैंने इसलिए किया कि आपको कोई भी अगर बीमारी है तो डेफिनेटली diet gonna help you definitely, but your state of mental peace, your happiness, your smile is equally important, because जब आप स्ट्रेस होते हो it releases the cortisol, जितना बॉडी में cortisol हार्मोन होगा डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय कॉलिंग ऑन 7307303835। नंबर 1 डाइट प्लान फॉलो करो, एंड नंबर 2 ये नई रियल योगा ज्वाइन करो वर्चुअली भी। एंड माई मॉम इज़ देयर, हाय हेलो जीनी, हाउ आर यू? आशा अग्रवाल मेरे ममा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। सो आई फील सो प्रिविलेज्ड, ब्लेस्ड। आप फैमिली फ्रेंड्स आप सब इस टाइम पे मुझे सुन रहे हो, थैंक यू। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो मेरे हमेशा मिस हो जाते थे, आज स्पेशली मैं रात तक जाग रही हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। राइट, सो एक और क्वेश्चन है सिमरत _017, हाउ टू रिड्यूस हर्स्यूटिज्म इन PCOD? बेसिकली PCOD में हेयर ग्रोथ हो जाता है चिन पे या फेस पे, सो उसको कैसे कंट्रोल करें? गेट द हार्मोनल स्टडी डन, उसमें आपका जैसे कि प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, ये सब आप टेस्ट करवा लें, और क्या चीज़ बढ़ रही है। प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है तो हाई फाइबर डाइट करेंगे, ठीक है, मिल्क डाइट में बंद करेंगे, और अगर हमें लगता है कि FSH बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान करेंगे। सो आपको पहले ये देखना है कि फेशियल हेयर ग्रोथ आ गया है, और उसी टाइम पे अपना हार्मोनल स्टडी कराओ, कौन सा हार्मोन अपसेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पर्सनलाइज डाइट कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अब हेयर ग्रोथ का ये मतलब है कि मेल फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन्स को हमें इंक्रीज़ नहीं होने देना है। हमें दूध, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, दूध हमें थोड़ा बंद कर लेना चाहिए, या फिर जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं या शुगर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है तो वो हमें बंद करना है। लो GI फूड्स हमें अपने डाइट में करना है, और हमें हैप्पी रहना है। जैसे मैंने आपको बताया कॉर्टिसोल भी एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है, हैप्पी रहना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोगों के आसपास रहना है जो आपको हर एक कंडीशन में ये बोले कि ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सो वो वाला एक तरीका। हाँ, सो यहाँ से ये क्वेश्चंस मैंने फिनिश कर, नहीं क्वेश्चंस और भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, PCOD डाइट मेघा ने पूछा है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट PCOD। आप लोग पूछ रहे हैं PCOD के बारे में ज़्यादा। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इट्स वेरी सिंपल। जिनके भी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, मदर फादर या फिर किसी को भी ऐसा डायबिटीज़ रहता है, सो फैमिली में इंसुलिन रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेफिनेटली वेट पुट ऑन होता है, PCOD होता है, और हार्मोन्स अपसेट होते हैं। सो PCOD की डाइट क्या होनी चाहिए जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करे? सो उसमें आप हाई फाइबर डाइट खाएं, मिल्क का इंटेक थोड़ा कम करें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि हार्मोन्स, क्योंकि वो प्रेग्नेंट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप लोगों ने सुना होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ का यूरिन, मतलब पुराने ज़माने में कहा जाता था ऐसे कि बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। सो सेम वे अगर किसी चीज़ में मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी कई बार होते हैं। सो मिल्क का भी ऐसा ही है, क्योंकि वो लैक्टेटिंग बफलो या काऊ या फिर एनिमल या मैमल के हार्मोन्स हैं उसमें। सो जब हम पियेंगे तो डेफिनेटली हमारे हार्मोन्स भी अपसेट होंगे। सो आपको PCOD डाइट में मिल्क कंट्रोल करना है, ग्लूटेन कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करने हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। सो बेसिकली जो नेचुरल चीज़ें हैं वो खाओ, एक्सरसाइज करो एंड हैप्पी रहो, दैट्स द पॉइंट। व्हाट डेली डाइट इज़ गुड फॉर 6-year-old boy? 6-year-old boy, ओके। बच्चों का डीवॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट है, विटामिन D, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 बच्चों का ज़रूर पता होना चाहिए आपको। एटलीस्ट 2 साल में एक बार, 1 साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए टेस्ट। और फिर उसके बाद बच्चों को कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं अपने बच्चों को डाइट में एग्स, नो हैच एग्स देती हूँ, जिसको आजकल लोग वेजिटेरियन एग्स कहते हैं, नो हैच एग्स होते हैं वो। सो एग्स
हमारे मेरे कोई फ्रेंड है तरुण, आप सब जानते हैं, हैंड फ्रूट उनका कंपनी है, मैं उन्हीं के यहाँ से एग लेती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बिल्कुल सेफ़ सोर्स है। तो बढ़ते बच्चों को प्रोटीन्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कैलोरीज डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है बार्ले, रागी, नाचनी जिसको हम बोलते हैं, एंड प्रोटीन्स, एग्स। सो 6 years ओल्ड बॉय के डाइट में एक तो ऑयल होना चाहिए, कोकोनट ऑयल। आप देसी घी देते हैं तो दे दो, मैं बच्चों को कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, ये वाले ऑयल ज़्यादा देती हूँ। इनको मखाने, ड्राई फ्रूट, अलसी की पिन्नी और सत्तू, जौ का सत्तू, चने का सत्तू, ये इनके डाइट में ज़रूर होता है। मैंने सारे मिलेट्स को कंबाइन किया हुआ है। मैं इनको बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, प्रोटीन एक्स, सेरेलैक, ऐसी कोई चीज़ें नहीं देती हूँ। सो मैंने अपने बच्चों को कभी सेरेलैक भी नहीं दिया है। सो शौर्य अभी ये सो रहा है, आपको फिर से देखना है शौर्य को, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। सो ही इज़ माई बॉय, हाँ, स्लीपिंग, ओके। सो बच्चों का मैंने आपको डाइट प्लान बता दिया। अदरवाइज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहती थी कि डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल है, ज़रूर आप देखिएगा। और यूट्यूब चैनल में मैंने बच्चों के लिए डाइट प्लान और प्रेग्नेंट लेडीज़ या COPD हर एक डाइट प्लान मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हाँ। और मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चुपके से देखते हो, कमेंट्स नहीं करते हो और लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ कर लिया करो आजकल। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस, हाँ, राइट। सो एनी इफेक्टिव वेट लॉस डाइट फॉर हॉस्टलर्स, वाई नॉट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। _AB_HIPS_HA, राइट। एनी इफेक्टिव वेट लॉस डाइट फॉर हॉस्टलर्स, देखिए, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। सो मेरे हस्बैंड का बर्थडे आया था 27 को, भारत बंद हो गया था 27 मार्च को, तो ज़मीन से नहीं, मैं उनको प्लेन से ले गई। सो ऐसे ही वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। सो आप जो करना चाहते हो, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ कि अगर मुझे जो भी करना है, नो बडी कैन स्टॉप मी, नो सर्कमस्टांसेस कैन स्टॉप मी। सो अगर आप हॉस्टल में गए, नंबर 1 यू हैव दैट मेस में आप मेस वाले भैया को अपना आटा, ओट्स का आटा, ये सब दे सकते हो। अगर वो आपके लिए वैसे रोटी बना दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक रोटी मेकर लेकर जाओ, उसमें रोटी मेकर बनाओ, चीला बनाओ, अंडे बॉईल करो। अगर वो भी नहीं तो क्या, दही मिलता है, दही में आपने फटाफट से ओट्स डाला, ओवरनाइट ओट्स, चिया सीड्स और फ्रूट्स डाल के वो ले लो। सैलड ले सकते हैं। और आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्लूटेन फ्री ब्रेड, आप वो ला के रख सकते हो, या आजकल रोटी बनी बनाई आती है, वो कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे मेरे को टाइम नहीं, और अभी आप देख रहे हो दिस इज़ नॉट माई हाउस, आई एम स्टेइंग समवेयर एल्स, बिकॉज अभी मैं बिल्कुल घर से बेघर हूँ, मेरा घर बन रहा है चंडीगढ़ में। सो अब मैं जहाँ पे रह रही हूँ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ कि मैं संडे को सूप बना लेती हूँ, और वो सूप को मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, तो वो आइस क्यूब की तरह वो मैं निकालती हूँ और उसको मैं अपने साथ गाड़ी में ले जाती हूँ, और वो अपने आप ही मेल्ट हो जाता है, और फिर उसको मैं पी लेती हूँ। सो ऐसे आप सूप्स बना के रख सकते हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग, आई डोंट गेट टाइम टू कुक फॉर माई सेल्फ। सो आई जस्ट टेक आउट 1 day फ्रॉम अ वीक, आई कुक माई चपातीज ऑल्सो, आई रेफ्रिजरेट देम, और जब मुझे चाहिए होता है वो अपने आप ही इतनी गर्मी है आजकल, तो गाड़ी में रखो तब भी गर्म हो जाता है। सो दैट वेज यू कैन मेक अ पिन्नी। सो ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी, बाहर की दुनिया में भी, मतलब जब फॉरेन कंट्रीज़ में भी रोटी का नहीं होता है इतना ज़्यादा ट्रेंड। सो यू कैन जस्ट मेक योर वाइट चना सैलेड, ब्लैक चना सैलेड, आप ऐसे चीज़ें बना सकते हैं। ओट्स, आप मेदूस बना सकते हैं। मेदूस क्या होता है, रागी की बॉल्स को सिर्फ स्टीम करो, सो यू डोंट नीड टू रोल योर चपातीज़, तो आप ऐसे रागी की इडली की तरह आप ऐसा कुछ भी स्टीम कर सकते हैं। सो हॉस्टलर्स के लिए भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव दैट नियत, हाँ। सो दैट्स द पॉइंट। komal.Jhanwar कैन, आई थिंक इन्होंने AMY लिखा है, AMH होगा। komal.Jhanwar, इनका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। इन्होंने लिखा है कैन एनी हार्मोन बी इंक्रीज थ्रू डाइट, आई थिंक दिस इज़ AMH। देखिए कोमल, कोई भी एक चीज़
खाने से कोई चीज़ ना गलत होती है और ना सही होती है। वैसे ही ग्रीन टी, जैसे लोग कहते हैं आज हमने ग्रीन टी 2 कप पी लिया हम पतले हो गए, ऐसा नहीं होता है। सो दिस हैज़ टू बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदर। सो AMH के लिए भी यही है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स या फिर जिंजर, गार्लिक, दीज थिंग्स कैन इंक्रीज योर AMH, नहीं। AMH डाइट से इफ़ेक्ट हो सकता है बट कम्प्लीटली डाइट से नहीं होगा। सो खुराक एक ऐसी चीज़ है, पोषण एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बने हैं, हमारे सेल्स टिश्यूज़ बने हैं। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप सब जानते हैं, मुंबई में अभी गई थी, मेरी एक क्लाइंट ने कंसीव किया था, मैं उसके बेबी शावर में गई थी। 4 साल से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी और उनके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थे, बट स्टिल उन्होंने कंसीव किया विदाउट IVF, विदाउट IUI। सो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत बड़ी पावर होती है। पर AMH से आपका क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली AMH डायरेक्टली लिंक नहीं करता है, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स और एसोसिएटेड होते हैं। बट स्टिल आप अगर विटामिन D अपने डाइट में बहुत अच्छा रखते हैं, विटामिन D में एक्सपोज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जिंजर, गार्लिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हेल्प करता है। हाउ टू मेंटेन आवर स्किन, कालपुरी। स्किन में अगर मैं हाइपर पिगमेंटेशन की बात करूँ, कालपरी _पूनम। सो अगर पिगमेंटेशन है सो उसका रीज़न हो सकता है कि भाई प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। सो आपको अपने हार्मोन्स को स्टडी ज़रूर करना चाहिए। PCOD और सबसे अच्छी बात, मतलब जो आपको करना चाहिए स्किन केयर रूटीन, दैट इज़ टू हैव इनफ ऑफ वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग स्किप करते हैं। एंड देन अगर आप देखेंगे मैं फेस पे क्या लगाती हूँ, मैं फेस पे वैसे तो सब लोगों का जो गोरा काला रंग होता है वो सब कुदरती होता है, बट स्टिल इफ़ पॉसिबल यूज़ द नेचुरल प्रोडक्ट्स मीन्स कोकोनट ऑयल। आप रोज़ वाटर से या कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव कर सकते हैं। और मेकअप लगाने से पहले भी आप कोकोनट ऑयल लगा लो, या फिर आजकल बहुत सारे आर्गन ऑयल और बहुत सारे ऑयल्स हैं। सो मॉइस्चराइजर्स की जगह आप अपने फेस पे ऑयल लगाएं। अगर आपको एक्ने वगैरह नहीं होता, एक्ने होता है सो लेक्टोकेलामाइन बहुत अच्छा है, आप वो लगा सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। मेंटेन योर स्किन का बस इतना सही है कि अमाइनोज, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर आपको उसके लिए अपना पता होना चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ आपको पानी पिए, लेकिन आप में फेरेटिन कम है, तो पानी वाला जस्टिफाइड नहीं होगा ना। सो यहीं पर एक पर्सनलाइज चीज़ें होती हैं कि आपका ब्लड टेस्ट क्या कहता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, B12 कम है, या कुछ भी कम नहीं है, आप पानी भी अच्छा पी रहे हैं, आप सैलड बहुत अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आप सो अच्छा नहीं रहे हो, सो तभी भी आपका स्किन ख़राब होगा। सो एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोइंग एंटी ग्रेविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ग्रेविटी की फोर्स में रहते हैं। सो एक बार वो जो हम शीश आसन करते हैं, हेड स्टैंड करते हैं, हैंड स्टैंड करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके कंप्लीट बॉडी में जाए। एंड येस, वी नीड टू रिस्पेक्ट एजिंग। सो अगर एजिंग के साथ रिंकल्स हैं या वो थोड़ा सा ग्लो कम हो रहा है, सो दैट्स फाइन। Ultimately you should be healthy and happy from within, so that's fine. Doesn't even matter what others think for you. Okay, right. What type of diet? राइट, सी देखिए, अगर आप टाइफाइड की बात करें, डायरिया की बात करें, ऐसे कोई भी मेडिकल कंडीशंस की बात करें, दैट हैज़ टू बी वेरी पर्सनलाइज्ड इन द सेंस आपको सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको लगता है कि बलगम है तो डेफिनेटली राइस, बनाना, कर्ड, ऐसी चीज़ें आप नहीं लेंगे, आप स्टीम ज़्यादा करेंगे। सो हर एक चीज़ का एक सिम्टम होता है, सिम्टम के अकॉर्डिंग डाइट्स अवॉइड करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है। सो हर एक का वही इलाज नहीं होता कि खिचड़ी खा लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, राइट। एक शनाया का क्वेश्चन है, व्हाट टू ईट टू क्योर हार्मोनल इम्बैलेंस इन गर्ल्स, टेकन बर्थ कंट्रोल पिल्स आर ओके और इट कैन बी क्योर फ्रॉम डाइट। हार्मोनल इम्बैलेंस, देखिए मुझे मालूम है बहुत लोग हार्मोनल इम्बैलेंस को या फिर पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स या 21 दिन का वो जो हार्मोन का एक पूरा साइकिल दिया जाता है वो लेते हैं। सो बट वो एक मेडिसिनल एक एडवाइस है जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर्स देते हैं, और बहुत हद तक वो आपको फॉलो भी करना चाहिए। पर अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपके जो ईटिंग हैबिट्स हैं, सो अगर वही ख़राब हैं, तो आप अगर वो थेरेपीज़ भी कर रहे हैं, वेट लूज़ नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम होता है। ओके, ऐश्वर्या का क्वेश्चन है, कैन योगा हेल्प टू क्योर PCOD? सो
ऐश्वर्या, डेफिनेटली सी पीसीओडी क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं और पीसीओडी क्योर हो सकता है इनकेस अगर आप अपने हार्मोन्स को ठीक कर लें और अपना वेट कंट्रोल कर लें, और योगा डेफिनेटली हेल्प करता है। बट डाइट, एक खुराक एक अल्टीमेट चीज़ है। 70% 30% का रेशियो आपको समझना पड़ेगा। सो अगर 70% डाइट ठीक नहीं किया, 30% योगा करके भी क्या करेंगे। सो बट डेफिनेटली योगा इज़ बेटर देन जिमिंग बिकॉज योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। आई सपोर्ट योगा, आई सपोर्ट यिन एरियल योगा। सो यप। अब स्वीटी का क्वेश्चन है 143 के कुछ भी कर लो वेट गेन हो जाता है। सो स्वीटी, वेट गेन क्यों हो जाता है? या तो थायराइड कंडीशन है या फैटी लीवर है। आपको पहले कंडीशन समझनी पड़ेगी, आपका रीज़न क्या है वेट गेन का। फिर जो रीज़न है, जो डायग्नोसिस है, उस पर वर्क करो। कईयों का वेट बढ़ता है विटामिन डी डेफिशिएंसी से, कईयों का थायराइड की वजह से। पर हम लोग थायराइड को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हम वो छोटी जो सुबह गोली खाते हैं ना, वो आपका हार्मोन जो आपका नहीं बन रहा है वो आप खा ही लेते हो। सो बेसिकली अब वेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम चिड़चिड़े रहते हैं, हम लोग नेगेटिव रहते हैं, और चिड़चिड़े रहने से, नेगेटिव रहने से, लोगों को नेगेटिव बोलने से क्या होता है? कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। अब कॉर्टिसोल स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है तो डेफिनेटली फिर वेट पुट ऑन होता है। हाँ, सो इसीलिए एक तो खुश रहो और पानी ज़्यादा पियो। समझो कि आपके बॉडी में किस चीज़ की ज़रूरत है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या वाटर की डेफिशिएंसी है, और सब कुछ होता है। कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल है ही नहीं, मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको। हिमी का क्वेश्चन है, क्रिएटिनाइन बढ़ गया है, कौन से फूड अवॉइड करें? राइट, हिमी, आई थिंक यू आर अ डाइटिशियन, है ना? अच्छा, ठीक है। देखिए, आपको प्रोटीन्स अपने डाइट में या अपने पेशेंट्स के डाइट में आपको प्रोटीन्स कम करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैक्सिमम डाइटिशियंस फॉलो करती हैं, और अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि मेरी जो डाइटिशियंस की कम्युनिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और ओके, यहाँ पे किसी ने कोलेजन बूस्ट के लिए, शालिनी आप बोल रहे हैं कि कोलेजन बूस्ट कैसे करें? सोने से कोलेजन बूस्ट होता है, तो आप जितना ज़्यादा अच्छे से सोएंगे उतना कोलेजन खुद बूस्ट अप होगा। पर डेफिनेटली हम लोगों को विटामिन सी, सेलेनियम, जिंक, ये सब जो हम लोग जिस चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है, हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के बारे में बात करते हैं, हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात नहीं करते, माइक्रो मिनरल्स के बारे में बात नहीं करते। पारुल अग्रवाल, वर्कआउट करो, एब्स और अच्छे डाइट लो। हाँ जी, अमित सिंह जी, बड़ी अच्छी एडवाइस है आपकी। वो कह रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि हर्बल लाइफ पियो, योगा करो। ठीक है जी, आजकल तो दुनिया में हर कोई डाइटिशियन ही है, चाहे वो हमारी दादी हो, नानी हो, या अमित जी हो, या कोई भी हो। सो बस आपको मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी चीज़ आप कंप्लीट लाइफ के लिए फॉलो नहीं कर सकते, और कोई चीज़ जो इतनी आसान है कि डब्बा खोलो और घोलो और पी लो, सो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, चाहे उसमें सेल्यूलोज हो, स्टार्च हो, या कुछ भी हो। सो आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनीज़ हैं या कोई कुछ और सारे ऑर्गन्स हैं। सो आप किसी भी ऑर्गन को अब्यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आप प्रोटीन्स नहीं ले सकते क्योंकि आपकी किडनी भी ओवरलोड हो जाती है। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। जैसे आपके आपसे डेफिनेटली आपकी दादी ज़्यादा हेल्दी रही हैं, आप सब मानते हैं ये बात को। उनको आपसे कम डॉक्टर्स को मिलना पड़ा। सो आपके दादी ने हर्बल लाइफ, या आपके दादी ने कोई प्रोटीन शेक्स, या आपकी दादी ने कोई ऐसे आजकल बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी हैं, वो सब नहीं किया था। उन्होंने नेचुरल खाना खाया था, वही जो मैं बोलती हूँ, जौ सत्तू या काली गाजर की कांजी, या फिर हाँ अभी इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्थ की बात कर रही हूँ, वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा चलता है। पर अगर हम साउथ की बात करें, वहाँ पे नाचनी वगैरह बहुत चीज़ें चलती हैं, जिसको मैं आजकल प्रमोट करने के लिए आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रमोट कीजिए, सब लोग उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। बेली फैट जल्दी कैसे कम कर सकते हैं? कोई भी चीज़ निशा हम लोग जल्दी नहीं कर सकते। अगर मैं सिजेरियन, मेरे बेबी डिलीवर अगर हुआ, 9 महीने की तो प्रेगनेंसी है, सो मैं 9-10 महीने तो लगाऊंगी, एंड आई नीड टू रिस्पेक्ट दैट थिंग, दैट आई नीड टू बी, आई हैव दैट राइट टू बी मेंटली हेल्दी, आई नीड टू एन्जॉय माई लाइफ ऑल्सो। सो दैट्स फाइन, जल्दी करने में कोई प्रेशर मत लगाओ, बस हेल्दी खाओ और इन्जॉय करो, यहाँ से हेल्दी रहो। सो बेली फैट अगर फैटी लीवर का है तो 6 महीने लगते हैं, अगर प्रेगनेंसी के बाद का है तो डेफिनेटली 9-10 महीने लग जाते हैं। और बेली फैट के लिए सोडियम डाइट में थोड़ा कम करो, और मीठा बंद करो, सैलेड ज़्यादा करो, प्रोटीन ज़्यादा करो। राइट, पारुल, थैंक यू। प्रेगनेंसी में रात को हंगर पैंक्स में सत्तू ले सकते हैं? ज्योति, आपका क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन लूँगी।
ओके मैम, आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अश्वनी का क्वेश्चन ढूंढोगे एक बार प्लीज़? ठीक है अश्विनी, मैं आपका क्वेश्चन एक बार ढूंढ लेती हूँ। आपने क्या क्वेश्चन किया था? अच्छा, अभी एक मेरे पास था, 1 सेकेंड। प्रेगनेंसी में क्रेविंग, ओके। सो क्रेविंग के बाद मैं एक अश्विनी का क्वेश्चन ले लूँगी लास्ट। सो क्रेविंग्स, पहले मैं प्रेगनेंसी की बात करती हूँ। प्रेगनेंसी में डेफिनेटली क्रेविंग की होती है क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है ना, आप लोगों को लगता है कि आप चला रहे हो, पर नहीं, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन चला रहा है। सो आपका ब्रेन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो वो अपने आप को हेल्दी स्टेट में, हैप्पी स्टेट में लाने के लिए फूड डिमांड करता है। अब वो फूड कौन सा होता है? जो एक हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ करे, जैसे कि चॉकलेट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या शुगरी फूड्स। सो या जो क्रंची फूड्स होते हैं जो आपका ध्यान डाइवर्ट कर पाएँ। आपका माइंड का एक रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सो रात को अब क्या हुआ, क्योंकि रात को एक तो आपने अपना पानी का इंटेक सभी लोग कम कर देते ताकि रात को हमें लू ना जाना पड़े, हमें वॉशरूम बार बार ना जाना पड़े। सो एक तो ये रीज़न हो जाता है, पानी कम कर लेते हैं। और माइंड का क्या होता है, हमारा माइंड हमेशा थर्स्ट और हंगर के सिग्नल में कंफ्यूज रहता है। सो हमें पता नहीं चलता कि अब जैसे सपोजिंगली मैंने अभी पानी मुझे पिए हुए 2 घंटे हो गए, अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भूख लगी है, बट एक्चुअली जब मैं 2 ग्लास पानी पीऊँगी तो मुझे भूख वाली क्रेविंग नहीं होगी। और अगर आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमने लास्ट मील 7 बजे लिया था और हम सो रहे हैं 2 बजे, तो हमें बीच का इतना बड़ा टाइम में हम क्या करें, हमें खाना खाना होगा। पर आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, उसका सन के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि रात को आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है और आपको उतना भूख नहीं लगता है। इट्स जस्ट योर mind demands for it. You are stressed, not hungry. So you need to understand that point. पर अभी आपका क्वेश्चन था कि हंगर पैंग्स में क्या करूं? सत्तू ले लूं? हाँ, ले लो। आप पानी में या पतली लस्सी में आप सत्तू घोल के पी सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस अभी भी यही रहेगा कि रात के टाइम में कोशिश करें कोई इलायची माउथ में रख लें या मुलेठी माउथ में रख लें, च्युइंगम ले लें। अगर आप इसको जब च्यू करोगे तो च्यू एक साइंटिफिक एक मेथड है। च्युइंगम लोग पहले खाते होते थे, उसका रीज़न यही है कि जब आप च्यू करते हैं तो वो आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करने में हेल्प करता है। सो रात के हंगर पैंग्स के लिए आप क्या करें, और बाकी लोग भी जो वेट लॉस डाइट्स पे होते हैं उनको रात को भूख लगती है, अपनी स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम यूज़ करें। इफ़ इन केस अगर आप काम नहीं करते, कई लोग काम करते हैं रात को जेन्युइनली कि उनका इंटरनेशनल कुछ काम होता है, बट इन केस अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपने पास खीरा रखो, मखाने रखो और कोई ऐसी चीज़ रखो जो आप मंच कर सकते हो। सो वो मंचिंग हमेशा ठीक रहती है, इजी रहती है। रात के टाइम में बॉडी को जितना कम काम कराओगे, क्योंकि जब आपको सोना है आपका पैनक्रियाज जो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, जो थायराइड ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या हार्मोन्स अपसेट हो रहे हैं, या फिर फैटी लीवर ठीक नहीं हो रहा, या ESR बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ये सब बॉडी अपने आप प्रिपेयर कर लेता है। सो डार्क सर्कल्स और कोलेजन बूस्ट, अभी मेरे से कोई क्वेश्चन कर रहा था, आप जब सोते हो बॉडी इतनी अच्छी है, नेचर इतनी अच्छी है, कुदरत इतना अच्छा है, भगवान अल्लाह इतना अच्छा है कि वो रात के टाइम पे रिपेयर अपने आप कर देता है। आपको इतना ज़्यादा कोई मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं थी। सो बस रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये प्लीज़ देखिए कि रात को सोने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है और आपको इतना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं योगा सीख रही थी अपने गुरु से, तो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि आपको पता है आपकी बॉडी इतनी सी है, स्टमक इतना सा है, आप इतना जब खाना खाते हैं हर एक चीज़ में एनर्जी है, ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आप कहाँ स्पेंड करोगे। सो वो ऊर्जा कैसे स्पेंड होती है? गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बीमारियाँ, ये। सो हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो बस इतना पॉइंट समझिएगा, फिर काम बहुत कीजिए। और बाकी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको DM कर दीजिए। व्हाट इज DM? डायरेक्ट मैसेज कीजिए, DM कीजिए, डायरेक्ट मैसेज इनबॉक्स कीजिए, मतलब इनबॉक्स कर सकते हैं। और मेरी टीम, मैं, हम सब आपको रिप्लाई करेंगे। मैम फेस पे गड्ढे हैं, उसको परमानेंट कैसे ख़त्म कर सकते हैं? गड्ढे हैं यानी कि पोर्स हो गए, आप ये कह रहे हैं। सो अगर पोर्स हो गए हैं तो डेफिनेटली अमाइनो, कोलेजन, पर्ल पाउडर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और आयु,
आप 7307303835 पे कॉल करके अपने रिपोर्ट्स मुझे दिखा दीजिए। फेरिटीन लेवल्स चाहिए होंगे मुझे, और मैं आपको लिस्ट दे दूँगी। जब आप मुझे वो दिखाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको सब लोगों को बता देती हूँ। कोई भी आप प्लीज़ किसी से जब अपनी बीमारी का कोई सोल्यूशन पूछ रहे होते हो ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जनरलाइज चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करेगी। हर एक की बॉडी यूनिक है, उनका ब्लड टेस्ट कुछ और है, उनके सिम्टम्स कुछ और है। अगर उनका फैटी लीवर, उनका पेट है तो हो सकता है वो फैटी लीवर की वजह से हो, या पेट का जो फैट है वो इसलिए हो कि टॉक्सिन्स डिपॉजिट है और एनीमा करेंगे और वैसे ठीक हो जाएंगे। सो हर एक का एक रीज़न होता है। सो पर्सनलाइज्ड अपने बॉडी की रिस्पेक्ट करें और डाइटिशियन को ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। और 7th April समथिंग न्यू इज़ कमिंग टू यू। आई एम स्टार्टिंग माई डाइट ऑन व्हील, डाइट टिफ़िन। सो ट्राई सिटी में जितने भी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम होंगे, हम टाइप्स कर रहे हैं और पेशेंट्स को अपने हाथ का खाना में पहुंचाऊंगी। नंबर 1। नंबर 2, डाइट फूड। जो लोग हॉस्टलर्स हैं, जो ऑफिस में खाना नहीं बना पाते हैं, ऑफिस में होते हैं, बिज़ी होते हैं, या फिर मेरी तरह मैं टाइम नहीं निकाल पाती और मुझे होता है हाय कोई खिला दे खाना, तो मेरी आज डाइट हो जाती है अगर कोई दे देता टिफ़िन। ठीक है, तो भूख लगी थी, कुछ और ना खाते हम रास्ते से। तो ऐसे लोगों के लिए डाइट टिफ़िन हम लेकर आ रहे हैं 7th April से। अगर आपको अपनी बुकिंग करानी है डाइट टिफ़िन के लिए, ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, 7307303835 पे आपको कॉल करना है। एंड फॉर नाउ गुड नाइट। और बहुत अच्छा सा वेदर है, पेड़ों पे नए पत्ते आ रहे हैं, रेड कलर, वो जो पीले पीले फूल खिल रहे हैं आपके घरों के बाहर भी। सो सब चीज़ों को एंजॉय करना, कलर थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, कडल थेरेपी, स्प्रेड लव, and that's it. Positive vibes, stay healthy, bye bye, take care.